چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، تو لہذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمن کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا۔ نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا۔ آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں۔ ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکیج لانے سے پہلے کی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ اور پہ یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا۔ بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہیں، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو۔ تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا، اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی۔ ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمینیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے اربوں روپے کی افرز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔ بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں، سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے، یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا۔ کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے، تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں، 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا۔ کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع، بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے، اس کا کوئی عقلی، منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں۔ لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے، کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے۔ میں خود لاغر ہوں، نکات فیل کر رہا ہوں، بیمار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو
आमाल कबीरा की ये मुर्तकिब हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का फिर वाहिद हल यही होगा कि पूरी कौम सड़कों पे निकले, इस निज़ाम को टक्कर देके और इसको गिराने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अब तो ये निज़ाम इस आईनी तरमीम की वजह से अब इन जराइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने बयान किया। कुछ बातें बैसियत PTI मेंबर नेशनल असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो JUI के हवाले से बात की या बिलावल साहब के हवाले से या कमल वली खान के हवाले से, वो मेरी ज़ाती आ रहा है। सर फैसल ने कहा है कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक करने जा रहा है और एक बड़ा ही कोई जो है सीनियर जो आपका लीडर है वो हेड करेगा, इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें इतनी सदाकत है जितनी आप लोगों को फैसल बावड़ा बनाने की, लीडर बनाने की पड़ी है। ये क्या किरदार है? हर वक्त मीडिया पे बैठा होता है और आप लोग कोट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई किसी की अखलाकियात होती हैं, कोई एथिक्स होती हैं, कोई वैल्यूज होती हैं। ऐसे किरदारों को आप लोग मीडिया पे प्रमोट क्यों करते हैं? ये हमारे इसमें कर रही है। कोई बता देना आप में से कि कोई अखलाकी जवाब है इस शख्स का PTI को चलिए सबके साथ लड़ रहा होता है, किसकी भी आप पे लड़ रहा होगा? कौन सी पार्टी है इसकी? सर आपके जो पार्टी में सर वोकला की तादाद बहुत ज्यादा है सर, खसूसी कमेटी बनी उसमें आपकी पार्टी शिरकत भी करती रही, लेकिन सर आप लोगों ने अपना मुसवदा पेश क्यों नहीं किया? आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुसवदा पेश करते कि हम इसके ऊपर राजी हैं, तो वो पेश करने में नाकाम क्यों रहे PTI सर? ये सारी आईनी तरमीम के पीछे जो वाहिद मुहर्रिक था वो ये था कि मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेदस्त पा करना था। तो हम इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते? हम तो अदालतों की आज़ादी की ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की हुक्मरानी की हमने ख्वाब देखे हैं। पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुस्तकबिल से नवाजने ख्वाब देख रहे हैं जहाँ अमन हो, जहाँ बदनामी और टेररिज्म जो है उस पर काबू पाया जा सके। मुल्क के हालात किस जानिब गामजन है? दहशतगर्दी ने KP को पारा पारा कर दिया है और यहाँ इनको पड़ी हुई है कि जी मैंडेट की चोरी को रोकने के लिए हमने ये करने हैं। ये जो आज में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद पीपल पार्टी और ऐसे लोग मिल के फिर अपने ही किए किराए पे पानी फेरने के लिए 18वीं तरमीम पीपल पार्टी का कारनामा था। आज अपनी 18वीं तरमीम को इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। आज जो 98वीं या जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से या अदलिया की आज़ादी के हवाले से 18वीं तरमीम के जो फायदे थे वो तमाम उन्होंने आज अंडू किए। अच्छा सर ये बताइएगा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता 2-3 एहतजाज आपके हुए जो फलाफ गए। अली मीन गन्नापुर साहब भी एक दफ़ा कोई 10-15 कोई 12 जिला पार करके पेशावर चले गए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप PTI क्राइसिस कह रही है, इसके जिम्मेदार PTI खुद नहीं है, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थे तो PTI की जानिब से जो उस वक्त तरामीम होती थी, वहाँ जो कानून पास होते थे वो भी किसी के कहने पे होते थे और उस वक्त भी पार्लियामान को हरासा किया जाता था। बुनियादी तौर पर मैं एक वकील हूँ। अगर PTI के दौर में भी बुनियादी इंसानी हकूक या रूल्स को बालायताक रखते हुए कोई अफआल हुए हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करता हूँ। हर दौर में जिस दौर में भी जो भी गलत काम हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। हमारी बुनियादी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। कहाँ ये शॉर्ट टर्म अपने आप मकासद के असूल के लिए ये इस तरह के पैकेजेस लाते हैं। और दूसरी जो बात आपने की ना एहतजाज के हवाले से, एक बात सबको मैं वादे कर दूं, मुझ पे भी तनकीद होती है कि एहतजाज में आप नहीं आए। आइंदा के लिए भी ये चीज़ मैं सेट कर दूं, अगर एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, मैं जानूं और मेरा काम इस तरह का एहतजाज जिसमें न मुझसे रजू किया जाता है, न मुझे शामिल किया जाता है, न किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, ऐसे एहतजाजों में मैं आने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे तफवीज़ करते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी 10-15 दिनों में पता लग जाएगा कि हम एहतजाज किस तरह कर सकते हैं। लेकिन और ये खान साहब को मैंने तजवीज़ भी दी थी, तो खान साहब ने जवाब में कहा था कि लीडरशिप कह रही है कि आप खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में
साथ में किसी को मिला के नहीं है। वो किस तरह नहीं मिला था? 9 मई के बाद तो कोई था नहीं जो मेरे साथ शामिल हो जाता। सर पटम ने घोड़ा अकेले ही दौड़ाया और क्रेडिट सबकी लिहाज है ना। हाँ, सब मार खाए मिलके, तो जो मार खाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा। सर, इमरान खान की रहाई मुश्किल होती नजर आ रही है आपको इस तरमीम के बाद? मैं ये समझ रहा हूं कि अब हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और तमाम मसाइल को इकट्ठे चैलेंज के बजाय सबसे पहला चैलेंज हमारा होना चाहिए फ्री खान नाउ। पहले खान की रिहाई हो, इसके बाद खान जब बाहर आ जाए, और इसके लिए हमारे पास और अदलियत तो मजीद कंप्रोमाइज हो जाएगी। खान की रिहाई की तवक्को तो हमारी अदलियत से है ना, आईनी तौर पे। तो लिहाजा और खान तभी रिहा होगा जब कम अज कम 2 लाख पाकिस्तानी मेरे साथ डी चौक में बैठेंगे। और ये इसको बड़बोले की बात ना समझे। 9 मई के बाद भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पीटीआई का एजेंडा जो है कोई लहरा सकता है। लाखों लोग मेरे साथ निकलेंगे भी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करे कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो। हमें ये करना चाहिए था। 6 माह शायद हमने ज़ाय कर दी है। एहतजाज हल है और एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बननी चाहिए। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मसले मसाइल हैं और खान को मैंने तजवीज़ दी थी, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन बाद में शायद कुछ हजरात को ये आइडिया पसंद नहीं थे, तो इस वजह से जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सर, जैसे अली अमीन डंडापुर साहब डी चौक से चले गए थे कारकुनान को छोड़ के, तो क्या समझते हैं कि 2 लाख लोग निकलेंगे आपके साथ? मेरा ख्याल है अली अमीन खान के चलने के हवाले से या डी चौक में एक अली अमीन खान तो नहीं है ना, पीटीआई में करोड़ों लोग हैं। अगर वो अंडर रेड आ गया था, उस पर चापा लग गया था, तो हजारों लीडर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मरकजी का तंजीम है, तो इनको चाहिए था ना कि जाते और इसको टेक ओवर करते। एक अली अमीन पे क्या इल्जाम धर रहे हैं? और लोग जो हैं मर तो नहीं गए थे, उनका काम था ना कि जाके बैठ जाते। अगर ये लीडरशिप बैठी होती, 70,000 लोग आए थे डी चौक पे, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने ज़ाय कर दी और उन बेचारों ने मार खाई। और जहां तक बात है, बिल्कुल वर्कर और क़यादत के बीच एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है और इस एतमाद के फुकदान को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि जब आइंदा एजिटेशन या एहतजाज की कॉल हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि वर्कर ये यकीन रखे कि अगर हम मार खाएंगे तो लीडर भी साथ में खाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर आइंदा एहतजाज होता है और मुझे इसमें जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं वर्कर को अकेला छोड़ूं। जब तक होंगे साथ में होंगे और इकट्ठे होंगे। सर, आपके बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो 15-20 कारकुनान को इकट्ठे करके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं। इस बात को हम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको देखना चाह रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं ये कह रहा हूँ ना, 6 माह ज़ाय हो गए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे जिम्मेदारी दें, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है। मुझे तो साइड लाइन किया गया है। ये जो इतने एहतजाज हुए सिवाय इस्लामाबाद के जलसे के, किसी एहतजाज में न मुझे किसी ने दावत दी, न किसी कमेटी में डाला, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कहा। 1 माह बीमार रहा, किसी ने बीमार कुर्सी तक नहीं की। तो लिहाजा मैं अब अपने तई खुद ही लीडर बन के कहूँ कि नहीं, पीटीआई पे मैं अब एक लीडर आ गया और मैं खुद एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ। ये खान का फैसला होना चाहिए और खान को ये फैसला करना चाहिए और अली अमीन खान को इस एहतजाज से अलग किया जाना चाहिए। अली अमीन खान वजीर आला हैं, नून वाले जो हैं गर्दान करते रहते हैं, सुबह जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा, इल्जाम तराशी अली अमीन खान पे होती हैं। और ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मनसब पे फाइज है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है। आप क्यों ये जवाज नून को फराहम कर रहे हैं? हम लोग हैं ना इस एहतजाज को करने के लिए। और अली अमीन खान ये 4 एहतजाज या 5 एहतजाज उन्होंने किए, और अगर वो न होता तो शायद मुझे तो नजर आ रहा था कि ये एहतजाज भी ना हो पाते। तो लिहाजा अली अमीन खान में ये समझता हूँ कि उसको सुबह संभालने दिया जाए। ये एहतजाज का काम उनको तफवीज़ होना चाहिए जिनका काम है। बहुत शुक्रिया।